Hello students, Vishakha Miss here with our new topic lesson number 13. ओके लेकिन उसके पहले मैं आपको जैसा कि मैंने पहले बोला था कि वी ऑल्सो कंप्लीट लेसन नंबर 12 डॉक्टर डू लिटिल लर्स एनिमल लैंग्वेज और उसके क्वेश्चन आंसर हमारे बाकी थे बराबर. सो हियर आई पुट क्वेश्चन एंड आंसर ऑन लेसन नंबर 12 डॉक्टर डू लिटिल. First question, hard words. Polynesia, understand, rush, scratching, doctor, gracious, excited, eyebrows, languages, biscuit crumbs, dresser drawer, twitching, dusting, interesting, kitchen, altogether. Then meanings, good, gracious, an exclamation of surprise, dusting off, removing dust, dressers, a cupboard with drawer, shelves, twitching, quick movement of some part of the body. Next, find the blanks. The words good, gracious show surprise. Polynesia was dash dash to the doctor talking. Polynesia was proud that she could think in two languages. Question and answer. Who was Polynesia? Polynesia was a parrot. Why was the doctor excited? The doctor was excited to learn animal language. C. What did Polynesia and the doctor do all that afternoon? An answer. Polynesia was giving words of birds language to Dr. Dolittle and he noted it down in his notebook. D. What did Polynesia tell the doctor about animals talking without making a noise? Polynesia told the doctor that animals use their eyebrows, nose, ears, feet and tail to talk without making noise. Next, what did Polynesia tell the doctor about animals talking without? ये हमारा हो गया. When did doctor give up being a people's doctor altogether? When the doctor learned animal language, he gave up being a people's doctor altogether. Next, find out and write the following from the lesson. The word that means is the porridge hot air. The word that means is the porridge hot air are ka, kai, fi, fi. Sometimes that means can't you see it has stopped raining in dog language. Answer. In dog language, twitching up one side on the nose means can't you see it has stopping rain. Do you think that the above two things as described in this passage could be true? Yes, the above two things described in this passage could be true. ये तो आपको पता है कि आपको नॉर्मली दूसरे एनिमल्स कौन से लैंग्वेज में बोलते हैं ये आपको बताना है. एंड आवर लास्ट क्वेश्चन नाउ फ्रॉम टुडे आज से हम वी विल स्टार्ट लेसन नंबर 13. लेट्स वेट. ओके, लेसन नंबर 13. लेट्स वेट एंड पेज नंबर okay 29. So students, open your book and watch. Firstly, let's wait का मीनिंग मैं नहीं बताऊंगी आपको, आप खुद मुझे बताओगे. ओके, लेट्स वेट ये एक मोनोलॉग है. मोनोलॉग सबसे पहले मोनोलॉग मीन्स वन पर्सन स्पीच एंड अदर पर्सन हियर. एक पर्सन बोलता है और दूसरा पर्सन दूसरे जो लोग रहते वो सुनते. और दूसरा एक रहता है डायलॉग. डायलॉग मीन्स कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन्स. दो लोगों के बीच ये कॉन्वर्सेशन रहता है, दो लोगों के बीच ये बातचीत होती है, उसको डायलॉग बोलते हैं. और मोनोलॉग मीन्स एक पर्सन बोलता है और दूसरे ये कर दे. वो कैसे बोलता है? ओपनली बोलेगा, मन ही मन में बोलेगा, लेकिन एक पर्सन बोलता है. तो हियर वी हैव अ मोनोलॉग. एक मोनोलॉग है, एक छोटी सी बच्ची है और एक छोटी सी बच्ची के जो मन में आए हुए ख्याल है वो ख्याल वो बताती है. देखो बहुत ब्यूटीफुल लेसन है ये, इतना इंटरेस्टिंग लेसन है कि आप खुद आपको ये पसंद आएगा. तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट. इफ़ यू हैव बुक, अगर आपके पास बुक है तो मेरे साथ वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन अपनी उंगलियां घुमाते रहो. ओके, देखो बहुत इंटरेस्टिंगली आपको बहुत मज़ा आएगा. अ मोनोलॉग. व्हेन थिंग्स गो अगेंस्ट देयर विशेस लिटिल चिल्ड्रन समटाइम्स फील वेरी सैड एंड लोनली. जब कुछ चीज़ें
छोटे बच्चों के अपोजिट हो जाती है, मतलब उनके मन जैसा नहीं होता, तो वो बहुत लोनली फील करते हैं। दे डोंट रियलाइज हाउ मच द पीपल अराउंड देम लव देम। उन्हें ये पता नहीं चलता कि सामने वाले लोग हमें कितना प्यार करते हैं। उन्हें बस उनकी मन जैसे नहीं होती, गुस्सा हो जाते हैं, उनको लगता है कि मैं बहुत अकेला हूँ। It's only when they wait and think properly that they understand it. Let's hear what this girl has to do. It's only when they wait and think properly that they understand. ये कब होगा? उनको अपने फैमिली मेम्बर्स हमें प्यार करते हैं, ये उन्हें कब पता चलेगा? जब वो थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, तब उन्हें पता चलेगा। नहीं तो तब तक उनको क्या लगता है, पूरे फैमिली में मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता। लेट्स हियर व्हाट दिस गर्ल हैज़ टू से। अभी देखते हैं यहाँ ये गर्ल क्या बोल रही है। देखो, इंटरेस्टिंगली है, हर एक के घर में नॉर्मली ऐसा कभी कभी होता है, क्योंकि आप भी छोटे बच्चे हो। तो नाउ वी स्टार्ट। दिस इज़ द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। वर्स्ट मीन्स सबसे खराब। आई एम फीलिंग वेरी सैड। मुझे बहुत बुरा लगता है। यू मे नॉट बिलीव इट, आपको अंदाज़ा नहीं है, बट आई एम द सैडेस्ट पर्सन इन द अर्थ। इस पूरे अर्थ पे, इस पूरे प्लैनेट पे मुझे लगता है मैं सबसे दुखी प्राणी हूँ। ये मेरे जीवन का सबसे खराब दिन है। इस पूरे प्लैनेट पे मैं सबसे दुखी पर्सन हूँ। द रीज़न इज़ दैट नो बडी लव्स मी। देखो, खुद ही बताती है। और इसका ये रीज़न क्या है? कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। आई हैव अ फैमिली, मुझे फैमिली भी है। यह अभी देखो बता रहे, आई हैव अ फैमिली, मम्मी, डैडी, ग्रैनी एंड अ यंग सिस्टर। मेरे फैमिली में ये सब लोग हैं। कौन कौन है? मम्मी, डैडी, ग्रैनी एंड अ यंग सिस्टर। आई हैव बीन सिटिंग हियर बिहाइंड दिस सोफा फॉर द होल डे। अभी ये क्या बोल रही है? मैं ये सोफ़ा के पीछे पूरा दिन बैठी हूँ। ओके ओके, फॉर द लास्ट 8 आवर्स। पूरे ओके, पूरा दिन नहीं, कम से कम 8 घंटा। ऑल राइट, एटलीस्ट 1 आवर। ओके, 8 घंटा भी नहीं, 1 घंटा। एटलीस्ट 10 होल मिनट्स एंड नो वन हैज़ नोटिस। ओके, 1 घंटा भी नहीं, 10 मिनट तो परफेक्ट है। देखो कितना चेंज हो रही है। 10 मिनट से मैं बैठी हूँ, लेकिन किसी ने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया। ये क्या लड़की बोल रही है? मुझे अच्छी खासी फैमिली है, मेरे फैमिली में हर कोई है, लेकिन मैं यहाँ, पहले बोलती है कितने हावर्स? 8 आवर्स। उसके बाद बोलती है 1 आवर, और लास्ट में बोलती है ओके 10 मिनट से मैं यहाँ बैठी हूँ, लेकिन मुझे कोई नोटिस नहीं कर रहा है। देखो, वो सोफ़ा के पीछे बैठी, आपको दिख रहा है पिक में इधर? ये देखो कितना गुस्से से लाल होके बैठी है। आप लोग बैठते हो ना ऐसे? ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, दे आर ऑल इंटरेस्टेड ओनली इन माई सिस्टर। मेरे फैमिली मेम्बर को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट, या सबको इंटरेस्ट सिर्फ मेरी छोटी बहन में है। इवन व्हेन शी क्राइज फॉर नो रीज़न, दे ऑल रश टू हर, पिक हर अप एंड गिव हर वट एवर शी वॉन्ट। मेरी पूरी फैमिली को इंटरेस्ट सिर्फ मेरी छोटी बहन में है। इवन व्हेन शी क्राइज फॉर नो, कभी कभी कुछ भी रीज़न नहीं होता उसका रोने का, फिर भी उसकी तरफ सब दौड़ जाते हैं और गिव हर वट एवर शी वॉन्ट, और उसको जो कुछ भी चाहिए वो दे देते। आई शुड रियली गो अवे एंड लिव इन सम इंटरेस्टिंग प्लेसेस। मुझे लगता है मुझे कहीं घर से निकल जाना चाहिए और किसी ऐसे इंटरेस्टिंग जगह पे रहना चाहिए। आई थिंक आई विल बिकम अ हर्बिट एंड वंडर इन द माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट्स। हर्बिट मीन्स एकांतवासी। आई थिंक आई विल बिकम, मुझे लगता है मुझे ऐसे किसी एकांतवास में, ऐसी जगह जाना चाहिए जगह कोई न हो, एक ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ कोई नहीं हो। एंड वंडर इन द माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट, जंगल में और फॉरेस्ट में मुझे घूमना है। आई विल ईट द फ्रूट ऑन ट्रीज एंड मेक फ्रेंड्स विद बर्ड्स एंड एनिमल्स। अभी घर में तो किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है, तो मुझे लगता है मुझे दूर एकांतवास में जाना चाहिए, जंगल के पेड़ से फ्रूट्स तोड़ के खाना चाहिए, और उधर जो बर्ड्स एनिमल्स है ना, उन्हीं से दोस्ती करना चाहिए।
ऐसा ये लड़की को लग रहा है। और आई कुड राइड अवे ऑन द कैमल एंड लिव इन डेसर्ट। अभी दोबारा उसको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि मुझे रेगिस्तान में जाना चाहिए। डेसर्ट में रेगिस्तान में जाना चाहिए, कैमल पे राइड करना चाहिए। एट नाइट आई विल स्लीप इन टेंट। एंड रात में मैं टेंट में। अब रेगिस्तान में गए हो क्या कभी, या टीवी में देखा है ना रेगिस्तान में टेंट होते हैं। और बेटर स्टिल आई विल ट्रैवल टू ऑन द नॉर्थ पोल एंड लिव इन एन इग्लू मेड ऑफ आइस। देखो, इसको लगता है मुझे जंगल में जाना चाहिए, सेकंड टाइम लग रहा है मुझे डेजर्ट में जाना चाहिए, रेगिस्तान में जाना चाहिए, अभी थर्ड टाइम उसको लग रहा है नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल कौन सा प्लेस है पता है? जहाँ बहुत सर्दी होते हैं और वहाँ इग्लू इग्लू हाउस रहते हैं, बर्फ़ का घर रहता है, उसको इग्लू बोलते हैं। मेड ऑफ आइस, आइस से बना हुआ रहता है। आई विल मेक फ्रेंड विद द पोलर बेयर। और उधर जो पोलर बेयर रहता है उसको मुझे फ्रेंड बनाना है, ऐसे ये लड़की सोच रही है। आवर नेक्स्ट पेज। ओके, नाउ हियर आवर नेक्स्ट पेज। व्हाट्स दैट? समथिंग सॉफ्ट अगेंस्ट माई बैक। ओह, इट्स अ बेबी। ये सब बता रही है वो। मुझे लग रहा है कि मुझे जंगल में जाना चाहिए, डेजर्ट में, रेगिस्तान में जाना चाहिए, या नॉर्थ पोल में जाना चाहिए। और इसी बीच क्या हुआ? व्हाट्स दैट? ये क्या है? समथिंग सॉफ्ट अगेंस्ट माई बैक। मेरे पीछे कुछ तो सॉफ्ट सॉफ्ट ऐसे रखा हुआ लग रहा है। ओह, इट्स बेबी। अरे ये तो बेबी है। What are you doing here, you silly? Go away, don't smile at me. उसको तो गुस्सा था बेबी के ऊपर। उसने बेबी को क्या बोला? What are you doing here? आप यहाँ क्या कर रहे हो? You silly मूर्ख, go away, जाओ, डोंट स्माइल एट मी। आपको पता है ना, छोटी बेबी जिसको समझ में नहीं आता वो हमेशा एक तो रोती है, नहीं तो हंसती रहती है, क्योंकि उसको बोलना नहीं आता। वो इसे देख के हंस रही है, तो इसको लग रहा है कि वो मुझे चिढ़ा रही है। डोंट स्माइल एट मी, मेरे ऊपर मत हंसो। वाई डू यू फॉलो मी? आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? ऐसा वो कर रहे हैं। मतलब कभी कभी आप लोग बोलते हैं ना, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? इज़ देयर नो बडी एल्स इन द हाउस टू लुक आफ्टर यू? घर में कोई नहीं है क्या आपको ध्यान देने के लिए? ऐसा गुस्से से वो बोल रही है। डोंट कम हियर, यू मे बम्प इन टू समथिंग एंड आई विल गेट ऑल द स्कोल्डिंग। यहाँ मत आओ आप। यू मे बम्प मतलब आपकी टक्कर लगेगी किसी चीज़ को, एंड आई विल गेट ऑल द स्कोल्डिंग, और इसके आपकी वजह से मुझे सब की डांट खानी पड़ेगी। वाई डू यू हैव टू डू एवरी थिंग दैट आई डू? कॉपी कैट। जो मैं कर रही हूँ वो आप क्यों कर रहे हो? कॉपी कैट मतलब मेरे जैसा आप क्यों कर रहे हो? अभी वो तो छोटी बच्ची है, जहाँ जहाँ ये जाएगी वहाँ वहाँ रेंगते रेंगते वो भी इसके पीछे पीछे जा रही है। इसको क्या लग रहा है? वो उसकी कॉपी कर रही है। कॉपी कैट मीन्स नकल करना। डोंट कम हियर, यहाँ मत आओ। यू मे बम्प इन टू समथिंग एंड आई विल गेट ऑल द स्कोल्डिंग। आपको किसी चीज़ की टक्कर लगेगी, क्योंकि वो कहाँ छिपी है? सोफ़ा के पीछे। तो यहाँ बताओ, किसी से टक्कर लगेगी और इसकी वजह से मुझे सब डांटेंगे बोल रही है। वाई डू यू हैव टू डू एवरी थिंग दैट आई डू? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वैसा तो क्यों कर रही है? ओ नेवर माइंड, रियली? The people in this house, they should look after her better. I am a growing up girl now. I can manage on my own. But what about this little baby? Come baby, let's crawl out from here. अभी देखो थोड़ा चेंज हो गई। उसको थोड़ा लगने लगा कि अभी मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेबी की तरफ से। वो क्या बोल रही है? ओ नेवर माइंड, कोई बात नहीं। रियली द पीपल इन दिस हाउस, दे शुड लुक आफ्टर हर बेटर। बराबर है, कोई बात नहीं, बराबर है। घर के लोगों को इसका ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्यों? आई एम अ ग्रोन अप गर्ल नाउ, मैं अभी बड़ी हो गई हूँ। आई कैन मैनेज ऑन माई ओन, मैं अपना खुद मैनेज कर सकती हूँ। बट वॉट अबाउट दिस लिटिल बेबी? लेकिन ये लिटिल बेबी का क्या होगा? सच में ये फैमिली के ऊपर डिपेंड है। कम बेबी, लेट्स क्रॉल आउट ऑफ हियर। क्रॉल मीन्स रेंगना। आ जाओ बेबी, यहाँ से हम
ऐसे रेंगते निकल जाते हैं क्योंकि वो सोफ़ा के पीछे थी। अभी देखो उसको पता चला कि अरे फैमिली इसके ऊपर ध्यान क्यों दे रही है, क्योंकि ये सच में छोटी है, इसको अभी फैमिली की ज़रूरत है और मैं बड़ी हो गई हूँ तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। कितना चेंज आया उसमें देखो। ये लास्ट का पैराग्राफ देखो, बहुत इंटरेस्टिंगली है। लास्ट के पैराग्राफ में सब कुछ बताया गया है। When I go away, I will take you with me, or you will keep crying for me all the times and they won't even guess what's the matter is with you. I really can't go away when you are so small. Let's wait till you are a little older. ये क्या बोल रही है लड़की देखो। When I go away, I will take you with me. मैं जब भी बाहर जाऊंगी, मैं जब भी कहीं इधर उधर जाऊंगी, अपने साथ तुझे लेकर जाऊंगी। और you will keep crying for me all the times and they won't even guess what the matter is with you. आप तो मेरे लिए रोगे, ये बच्ची बोल रही है, आप तो मेरे लिए रोगे, लेकिन फैमिली में किसी को पता नहीं चलेगा कि आप क्यों रो रहे हो। I really can't go away when you are so small. मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती क्योंकि आप क्या हो, बहुत छोटे हो। लेट्स वेट टिल यू आर अ लिटिल ओल्डर। थोड़ा वेट करते हैं जब तक आप बड़े नहीं होते। देखो इसने खुद ही मान लिया कि ये बेबी को फैमिली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो लास्ट का लाइन देखो, लेट्स वेट टिल यू आर अ लिटिल ओल्डर। लेट्स वेट, लेट मीन्स थोड़ा धीरज धरते हैं, इंतज़ार करते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, लेट्स वेट का मीनिंग लास्ट में आप खुद मुझे बताओगे। तो लेट्स वेट का मीनिंग क्या है, इंतज़ार, इंतज़ार करना। थोड़ा इंतज़ार करते हैं ताकि आप भी बड़े हो जाओगे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट लेसन नंबर 13। क्वेश्चन आंसर वी विल सॉल्व आफ्टर। तब तक के लिए bye bye. Stay home, stay fit, and work from home.